वो मेरे कंपनी में फिनिशिंग लेडी की तरह आई थी, ढाई काटती थी। 2020 से 2024 आज के टाइम पे उस लड़की के अंदर 14 लोगों की टीम है, वो प्रोडक्शन मैनेजर है। उसका एक्सपीरियंस बोलने द टाइम आई केम आउट अनुष्का, ये करना है ना, काम कर, तेरी शादी करते हैं, हनीमून पे हम सब चलते हैं। शादी के 15 दिन पहले मैं गई थी, शादी का फंक्शन कैंसिल करके। वहां पे अच्छे लोगों ने बोल दिया आप इसलिए अपनी शादी से क्या कहते हैं यहाँ पे 10 दिन पहले खड़े हो क्या? हमने दूर मेरा ससुर देखने वाला है, कम ऑन बी रिस्पेक्टफुल। शी केम टू मी एंड शी इज लाइक, ओह आई नो दिस प्रिंट, इज दिस फ्रॉम एरोटिश? And I was like struck. I remember मैं कहाँ खड़ी थी, मुझे उस टाइम याद है, सूरज कहाँ है, सब कुछ। I can like go back in that. And she gave me a video call. This just happened. And you know 15 कैमरास आपको देख रहे हैं, and वो एक दिन पहले ना रिलीज टाइम कराते हैं कि जो भी बोलोगे कुछ भी यूज हो सकता है, कैसे भी यूज हो सकता है। they can mold it any way they want. उनका नरेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गाइस आपके पास 15 सेकंड्स है आपको बताने की क्यों कोई बंदा आपको प्रोड्यूस करे। Why people are migrating to foreign cities for further studies? Topics related to women entrepreneurships, topics related to how to learn business from dad. Everything is discussed over this podcast with a genuine review from Anushka ma'am and Ayushi ma'am and a rich setup. ये पॉडकास्ट मोर बाइज्ड है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप्स। हमने डिस्कस करा कि क्या क्या लूप होल्स दोनों मैम को लगे अपना ब्रांड इरोटिश प्रेजेंट करने में ओवर शार्क टैंक्स, क्यों उनको डील नहीं मिली, एवरीथिंग। गाइस इफ़ यू विल सपोर्ट, इफ़ यू विल सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो, तो हम बाकी के अपने अपकमिंग सारे पॉडकास्ट ओवर दैट सेटअप कर सकते हैं। हाय अनुष्का, हाय आयुषी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you for having us. Thank you. तो मैम आपके बिजनेस टाइप से ना आप बिल्कुल परफेक्ट मैच होते हो एज अ को फाउंडर। मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, फ्रॉम सिस्टर्स टू को फाउंडर्स, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? I started आकार इंटीमेट्स 2019 के अंदर और एज अ एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था। I was very much busy with all the exports and the clients that I was getting. उस टाइम अनुष्का अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में थी एंड उसका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट वाज अ ब्रांड कंसल्टेंसी and I was one of the brands for her. So I am a graduate of Pearl Academy. I did my graduation of 4 years जिसके अंदर मेरा स्टाइलिंग और ब्रांडिंग का कोर्स था। फाइनल ईयर में हमको 6 मंथ का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना होता है, in which I basically started my own branding consultancy, where I was basically catering 11 different clients. And I was providing them consultancy about their brand image, the photography values. In your final year? In my final year. And Ayushi, क्योंकि उस टाइम पे start कर रही थी, she was one of my clients. Okay. So that is how I joined, because मेरा जो core forte है वो branding और photography के अंदर है. And I have always been very interested with fashion. Although design मैंने नहीं पढ़ा, design आयुषी ने पढ़ा है. But that is how our journey entangled together. And 6 महीने काम करते करते साथ में I realized that this is something that I always wanted to do, because just to curate fashion is a beauty in itself. To have an idea and convert it into something that actually people will wear, it's a very strong power to have. So just that entire environment kind of dragged me, or you can say pulled me into this direction. And when I could see that she is very much interested into it, and जैसे बोला नहीं जाता, एक बच्चे को बड़ा करने के लिए takes a village. A business is a kid and it takes a village. You cannot do it alone. And I could see that she has the same passion. She wants to build something of her own. So I asked her, would you like to do it full time with me? या इवन जब उन्होंने कॉलेज में इनिशिएट करा आपको थोड़ा कुछ दिख गया होगा, लाइक शी इज पैशनेट जो आ सकता है। So we both are college toppers. Okay. Yes, and being college toppers, we realize one thing: everything doesn't come with money. Initially, everything is beg, borrow, steal. Yeah. ठीक है, तो when it comes to beg, borrow, steal, I was like, घर में बहन कर तो रही है, इसी से करा लो. Charges, she will get a name of a company, I'll get it free of cost. मुफ्त की फोटोग्राफर मिल रही थी और कुछ नहीं तो. इवन मतलब आई हैड अ पॉडकास्ट विद कैंडिड मेंस आल्सो, वो भी आए थे, तो उन्होंने भी क्या करा था, उन मैम ने अपने भाई को ले लिया था एंड दे टोल्ड मी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए को फाउंडर्स की। तो आप तो मैम फोटोग्राफी में यू आर वेरी स्किल्ड, तो मैम आयुषी मैम आप काम डिवाइड कैसे करते हो दोनों? So from day one, once she got on board, हम लोग we sat down और हमने फिर डिसाइड किया कि हम करना क्या चाहते हैं, बिकॉज एक बिजनेस सिर्फ डिजाइन्स पे नहीं चल सकता, एक विजन पे नहीं चल सकता, उसके लिए एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, बिजनेस फंक्शनैलिटीज भी होनी चाहिए. सो वी सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड कि कौन क्या करेगा, बिकॉज अनुष्का का विजन काफी क्रिएटिव है.
she wants, and she is a creative person. She took the creative side of it. That's why she is the creative director. And I am a person जो 6 महीने के अंदर मुझे समझ में आ गया यार मैं अगर सिर्फ creativity करती रही business नहीं चल सकता. For business you need to work towards finances, you need to work towards growth, you need to work towards business development and multiple aspects of it. Surprisingly मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ जिसने ग्रेजुएशन में डिजाइनिंग करी है. आज के टाइम पे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जो स्टडीज के अलावा जो मैंने स्टडीज में पढ़ा था वो कुछ नहीं करती. I learned finance. I learned how to manage finances on the job. I learned how to do business development on the job. I learned how to run this business on the job. You do have a very good mentor. Come on. Yeah. I learned that from our dad. That's how. So our dad is a financial consultant. Yeah. And he's also a man of construction. Like he's into construction business. The major drive that actually is the sole reason is सबके पीछे जो एक hidden force होता है ना वो उनका है. Because to raise two women like us who are so strong कि वो ना नहीं लेती आंसर के लिए, जिन्हें अगर धंधा करना था तो उन्होंने अपनी शर्तों पे किया, उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको बैक कर रहा है, not financially but emotionally and to protect you from the society. क्योंकि बनिया खानदान से आते हुए ये जाके बोलना कि ब्रा पैंटी बेचनी है एंड इतने बड़े स्केल पे उस काम को प्राउडली कर पाना, you have to fight from a lot of things. The good thing with us was that it was never taboo for our father. For him, it was just a business. And for him, he always saw it. This is such a potential business. I could see huge things with you guys doing into it. Let's do it. Yeah. And every day when she says ना हमें ना सुनना नहीं पसंद. Business का rule होता है आपको पहले दिन से ना सुनना होता है. And because हम इतना ना सुनते हैं, हमें we are immune to hearing no, but we do not take no. आपने मना कर दिया, you are not interested. Next. But we will not take no that we are not going to go to the next person. And that's what we get from him. And not just him, even from our mother. Again, conservative society है आगरा की, बनिया background है. They have kept us sheltered from all the nuances that is going in the world. बेटा तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, 1000 बार फेल होना है कोई बात नहीं, घर आ जाना, we are there for you, but go and get fail. वेल सेड. पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जर्नी में. आयुषी मैम, एज यू मेंशन्ड ओवर शार्क टैंक दैट आपको इंडिया में पोटेंशियल कोर्सेज नहीं मिले, यू वेंट टू लंदन. तो आई सो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से कर लेते हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स वो फॉरेन में करते हैं. तो ऐसे क्या आपको वहाँ बेनिफिट्स मिलते हैं जो यहाँ नहीं मिलते? पहली बात, जब आप लॉन्ड्री कैटेगरी की बात करते हो, डेफिनेटली हर किसी को मालूम है कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बट उतना ओपनली बात नहीं होती. इसका मतलब क्या है? उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है. भले आप उस चीज को यूज कर रहे हो लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है. जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसकी एजुकेशन उतनी डिटेल्ड कैसे हो जाएगी? इसीलिए हम बाहर गए थे. अब क्योंकि लंदन के अंदर ऑब्वियसली बहुत एक्सेप्टेंस भी है तो लोग उस चीज को रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं कि है क्या, कैसे बनता है, क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है. एवरी स्मॉल डिटेल इज टेकन एज एन एजुकेशन देयर. इवन जिस तरीके से इंडिया के अंदर एथनिक बुटीक्स होते हैं ना जो कस्टमाइज करके आपके लिए सूट बनाएंगे, इंडिया के बाहर ऐसे बुटीक्स होते हैं जो आपके लिए आपके कस्टमाइजेशन की लॉन्ड्री भी बनाएंगे. सो जब इस लेवल का नॉलेज है और यहाँ पे तुम ब्रा पैंटी नहीं बोल सकते हो, खोले में बोलना चाहो तो, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको उतने वास्ट लेवल पे सब कुछ वो एक्सपोजर मिल रहा है जो आपको बाहर मिलता है. मैंने जो निटवेयर का कोर्स किया था, इट इज अ स्पेशलाइजेशन इन द फैब्रिक जिससे लॉन्जरे बनती है. उस कोर्स के अंदर 6 महीने का एक हमारा सेशन था जिसके अंदर लॉन्जरे डिजाइनिंग पढ़ाई जाती है. एंड जब मैं अपना सर्टिफिकेशन कोर्स करके आई थी, आई रियलाइज जो मैंने वहाँ पे महीने भर में पढ़ा या 1.5 महीने की क्लासेस में पढ़ा, वो यहाँ के 1 दिन का कोर्स था. एंड देन इन 6 months आई यूज्ड टू सिट डाउन विद माय टीचर्स एंड से, मैम आपने ड्रेपिंग सिखाई है लॉन्जरे में, बट लॉन्जरे में हम ड्रेपिंग का करेंगे क्या? हाउ डज द कंस्ट्रक्शन हैपेंस ऑफ इट? एंड दे आर लाइक, this is it what it is. If you want to You're learn, not allowed to ask questions after a point of yeah, time. this is it what it is. I'll tell you a very interesting story here. Ayushi is the first NIFT graduate ever to get a graduation project award in lingerie designing. क्योंकि जब इसने बोला अपने 4th year में कि मैं अपना graduation project lingerie में करने वाली हूँ, हर फैकल्टी वाज लाइक तुम पास हो जाओ बहुत बड़ी बात है, फेल हो गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है. Because you want to do in this, and I was the first one to get an award. And that was actually spoken on the stage for the first time ever in the history of NIFT. A girl is getting a graduation award in lingerie designing. We did 2 collections. One was lingerie and one was resort wear. मैम, अभी आपने मेंशन करा कि जो आपने पढ़ाई करी आप उसके रिलेटेड तो अपने बिजनेस में काम कर ही नहीं रहे, तो वो क्या था? Okay. This is an interesting story again.
आप जब डिजाइन कॉलेज में होते हो, आपका सपना क्या होता है? हम डिजाइनर बनेंगे। आपको ये बताया जाता है आप डिजाइनर बनोगे, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता डिजाइनर बनने के लिए और डिजाइन ब्रांड चलाने के लिए क्या किया जाता है। जब आप स्टार्टिंग में डिजाइनर बने होते हो, आप उस ग्लैम में होते हो, 2-3 महीने आपने देखा यार हम डिजाइन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट सेल्स? उस टाइम तो लगा था सिर्फ डिजाइन करके सेल्स भी आ जानी है। कपड़े बनाओ बिक जाएंगे, कपड़े बनाओ बिक जाएंगे, धंधा कैसे करोगे? डिजाइन कॉलेज में आपको ये नहीं समझाया गया था कि भाई जो आप डिजाइन कर रहे हो उसको फिर बेचना कैसे। नाउ इन बिजनेस इन 2 months आई रियलाइज्ड, बिकॉज बनिया बुद्धि कहीं तो काम आएगी थोड़ी बहुत, यार बना तो लिया, अब बेचेंगे कैसे? तो आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन बेचना, मोर ऑन बिजनेस डेवलपमेंट देन बनाना। एंड उसके बाद एक इंसान की एक ही तो बैंडविड्थ होती है यार, आइदर आप बनाओगे या आप बेचोगे। So basically what happened during that time, the initial I would say जब कंपनी के जो bricks अपनी जगह पे जब लग रहे होते हैं ना, उस टाइम पे for a good amount of 6 to 8 months I was trained under Ayushi. Okay. So I am not a designer by degree, but today I even know how to make my own patterns because everything and anything that she learned in her experience, in her job, बाहर जाके जो उसने पढ़ा, because she is a very good teacher, she could teach me all of that. So she is like ये पकड़ मेरा encyclopedia, अपनी creativity लगा, तू बना, बेचती मैं हूँ. Okay, that selling part and creating part. Yes. Yeah, So creative director, managing director. एंड मैंने इसकी कोई पढ़ाई नहीं करी है, सो बिकॉज ऑफ इट बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. I learn on the job, we try, we fail, we try, we fail. You recently got into business coaching as well. Yeah, so from last 2 years I'm even doing that, because of which obviously हमारी acceleration बढ़ी है. Yeah. But that gives one, like that always gives me a realization of one thing: the more you fail, the bigger is your success. So now we try, let's fail daily. तो guys 2019 में you launched on Myntra. मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि D2C में आपने क्यों नहीं लॉन्च करा? क्या क्या चैलेंजेस D2C में आते हैं एंड व्हाई यू लॉन्च ओवर दीज ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ओनली? सी देखो, एक दो बातें होती हैं. पहली बात तो ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स कि जब आप अपना ब्रांड बना रहे हो आप अपने नाम से जाना चाहो, लेकिन आपका नाम जानता कौन है? सेकेंड ऑफ ऑल, आप वहां जाते हो जहां आपका कस्टमर होता है, दुकान वही खोलोगे ना जहां इंसान आता है. अब अगर मिंत्रा पे, आजियो पे फुटफॉल है, ट्रैफिक है, और मुझे एज अ ब्रांड अपनी विजिबिलिटी दिखानी है दैट आई एम समवन इन द मार्केट, आई हैव टू बी अवेलेबल ऑन दिस प्लेसेस टू बिगिन विद. एंड आई गेस आज के टाइम पे काफी सारे ब्रांड्स हु वांट टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स, दे आर टेकिंग दिस मोटो दैट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट प्लेसेस. और काफी ऐसे होते हैं जो अपनी D2C से स्टार्ट करते हैं, लेकिन दे हैव टू ट्रिकल डाउन टू मार्केट प्लेसेस, बिकॉज एक अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू बी अ 360 अवेलेबिलिटी फॉर द कस्टमर. एंड फंडामेंटली स्पीकिंग, देखिए कोई सा भी बिजनेस है, स्टार्टिंग पे आप फोकस करोगे सेल्स आने पे, आपकी कैश फ्लो आने पे, आपकी रोटेशन बनने पे. वंस दोस थिंग्स आर डन, डेफिनेटली वी विल पुट इन मनी ऑन ब्रांडिंग. वी आर नॉट अ फंडेड कंपनी, वी आर बूटस्ट्रैप. दैट मीन्स कि अगर महीने के खर्चे पहले वो निकालने हैं और पहले सर्वाइव करना है. आप सर्वाइव कर जाओ, जो आपके पास जो एडिशनल क्वेश्चन आएगा, दैट इज द लग्जरी यू पुट ऑन ब्रांडिंग. सो मार्केट प्लेस वॉज द वेरी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन. वी विल बी एट अ प्लेस जहाँ पे हमारा कस्टमर है, हमारी धीरे धीरे सेल पे फोकस करेंगे, सेल आएगी, हमारा रोटेशन आएगा, हम यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे इन अ फास्टर पेस. And once we will have the money and the cushion for working on our D2C, we will take it out and work on that. मैम, कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और D2C में हमें वो मोटिव मिलता है कि हम कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट मार्केट प्लेस में वो नहीं मिलता. आपको लैक नहीं लगा अपने बिजनेस में कि हम कस्टमर से 1-to-1 इंटरेक्ट अभी नहीं कर रहे, मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं? तो माइट भी अगर कस्टमर से हम इंटरेक्ट करेंगे, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स हमें मिल सकती है. क्या उनको चाहिए? ऐसी बात नहीं है. जो आपका ये पॉइंट है, इट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम अपना D2C भी डेवलप कर रहे हैं. ऐसा नहीं है हमारे पास हमारा D2C चैनल ही नहीं है. ऑल्सो जो हमारी अवेयरनेस हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जाती है, देयर आर पीपल हु कम एंड आस्क अस क्वेश्चंस, देयर आर पीपल हु वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट. सो इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑल वे अराउंड. Even the products that are going through marketplaces, we send our brand cards, we send our questionnaire cards. Like if you have any issues about the product, if you have any feedback, definitely go to the marketplace, leave a review. But this is our direct contact, or this is our email ID where you can share your feedback with us. We are available 24/7 as per our working hours. We are trying to make it as accessible for our customer to reach us, regardless वो हमसे marketplace से खरीदे, हमारे Instagram से खरीदे, हमारी D2C से खरीदे. We do get a lot of customers who tell us that
हमने लेट्स से मिंत्रा से आपका प्रोडक्ट खरीदा था, बट वी फील दैट हमें डायरेक्टली आपसे बात करनी है, सो दे कम ऑन इंस्टाग्राम. देयर आर पीपल हु हैव द इनिशिएशन टू डू इट. सो ऐसा नहीं है कि देयर आर नो चैनल्स फॉर दीज पीपल. ऑफ कोर्स द कस्टमर कम्स फर्स्ट. मैम नाम को लेकर शार्क टैंक में थोड़ी सी डिबेट थी, तो उसको आपने कुछ इम्प्रोवाइज करा है अभी तक? देखो, आपको थोड़ी सी देखी थी, हम 1.5 घंटे के अंदर थे, हमें पता है कितनी बड़ी डिबेट थी. ठीक है. सो ओके, दैट बीइंग सेड, Erotish in 2019 it started as a lingerie brand. ठीक है. So the name Erotish aligns with the category there. बट ओवर टाइम जिस तरीके से हमारी कैटेगरी डेवलप हुई, हमने खुद ये बात रियलाइज करी कि जितना रिजल्ट और जितना एक्सेप्टेंस हमारे स्विमवेयर और बीचवेयर कैटेगरी को मिल रहा है, उतना एक्सेप्टेंस और रिजल्ट लॉन्जरी में आने में टाइम लगेगा. That being said, we were in conversation for a long time, Ayushi and I, that should we rebrand, should we change From the last name? 1 year before applying to Shark Tank Yeah. as well, हम लोग 1 साल से सोच रहे थे यार रीब्रांड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नाम चेंज करना चाहिए कि Because it is a very big decision. You cannot just wake up one day and be like, चलो नाम बदल देते हैं. इतनी आइडेंटिटी बनाई है तो साथ है ना तुम्हारे फिर. So that being said, हम लोग हमेशा से फैंस पे थे, बट शार्क टैंक में जाके जब आप इतने बड़े पायनियर्स के सामने बैठे हो और वो आपके क्वेश्चन को खुद ही वैलिडेट कर रहे हैं, so that was basically a conclusion कि अच्छा now we know what to do. and it was a no brainer for us कि भाई इस पे आर्ग्यू भी नहीं करना. Exactly. You are validating our doubt. Right. So it's a win-win for us. Might not be a win-win for them, but it's a win-win for मतलब us. बेसिकली बिना इक्विटी दिए मुझे कुछ मिला ही है वहां से, मैं ये बोलूँ. So yeah. मैम क्लॉथ्स और फूड के बिजनेस में मोस्टली कॉमन यूएसपीज होती है, टेस्ट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह. तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एज यू मेंशन्ड कि आपका डिजाइन एक सबसे बड़ा यूएसपी है, और पीयूष ने कहा था कि उसको नहीं लगता कि डिजाइन में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं. Okay, that being said, चलो डिजाइन साइड रख लेते हैं, because in a fashion industry, design is something that's always evolving. हर कोई कुछ ना कुछ नया लाता रहता है, and easily copyable as well, right? बट हमारी एक अप्रोच है जो हमें यूनिक लगती है. आज के टाइम पे इंडिया क्या वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंज्यूमर को फास्ट फैशन चाहिए, जितनी जल्दी देख सको, जितने ज्यादा ऑप्शंस हो इज बेटर. बट इससे क्या होता है, इन्वेंट्री होती है, लैंडफिल्स होते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है. हमारे काम करने का तरीका पूरा अलग है. अगर आज के टाइम पे हमारे बीच वेयर और स्विमवेयर कैटेगरीज में मान लीजिए 500 SKU हैं, हमारे पास किसी की इन्वेंट्री नहीं है. ओके. हम पहले सैंपल बनाते हैं, उस सैंपल को शूट कराते हैं और डाल देते हैं. हमारे पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. अगर एक थ्रेशोल्ड तक, मान लीजिए मेरी थ्रेशोल्ड एक आर्टिकल की 30 यूनिट्स है, विद इन 1 मंथ मेरे को दिखता है मेरे नए आर्टिकल के अंदर मेरे को 30 यूनिट्स की सेल दिख रही है, तब जाके हम उसका फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोडक्शन करते हैं. सो दिस मेक्स आवर बिजनेस मॉडल वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज वी ओनली इन्वेस्ट ऑन डिजाइनिंग. Our customer will get fast fashion article very quickly. हर महीने 30 designs, 40 designs as per our bandwidth. We'll always give them, but we'll only create its production or any inventory in it once we get an order. मैम एज यू मेंशन्ड कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, जब आपके पास फ्रीक्वेंट बल्क में ऑर्डर आने लगेंगे तो ये स्ट्रैटेजी ओवरकम कैसे करोगे आप? फर्स्ट डे कभी भी नहीं आते. वंस यू लॉन्च, देखो 2 तरीके होते हैं. आप एक फोमो भी क्रिएट कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज ओपन द चैनल्स ऑफ प्री ऑर्डरिंग, which creates by the end of the day आपके ब्रांड के लिए वो बहुत अच्छा गुडविल ही क्रिएट करता है. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप जैसे अभी हमारा जो सिचुएशन आज के टाइम पे, हमारी मेजर सेल हमारी मार्केट प्लेस से आती है. सो दैट बीइंग सेड, इट टेक्स टाइम टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ एनी आर्टिकल. धीरे धीरे करके उसका बल्क आएगा, धीरे धीरे करके वो आर्टिकल ऊपर जाएगा. वी हैव क्रिएटेड दीज इन हाउस सॉफ्टवेयर, वी हैव क्रिएटेड इन हाउस डेटाबेस जो हमको बताता है कि किस स्पीड से और किस रैपिड तरीके से कोई आर्टिकल अपना पोजीशन ऊपर लेके जा रहा है, उसकी इन्वेंट्रीज का जो इन्वॉल्वमेंट है कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है. एंड एज आयशी मेंशन्ड कि अगर किसी आर्टिकल को मैंने लेट्स से 1 तारीख को लॉन्च किया है और 30 तारीख तक ऑलरेडी मेरे पास 40 ऑर्डर उसके बन के जा चुके हैं, दैट सिंपली मीन्स आई नीड टू मेक इट इन बल्क. बट अगर कोई मैंने 1 तारीख को लॉन्च किया है और 30 तारीख तक उसके 2 ऑर्डर भी नहीं आया, दैट सिंपली मीन्स दिस डिजाइन इज नॉट वर्किंग, आई कैन डिसकंटिन्यू दैट एंड मेक समथिंग न्यू. And ideally what a brand would do, they will have 10 designs coming with inventory and then they'll struggle to dilute it. With us, we only have designs. We can test as many designs as we want. हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाता है सैम्पल क्रिएशन में और फोटोशूट के अंदर. So guys, how is your experience in Shark Tank? उसका एक्सपीरियंस was like the time I came out, Anushka.
ये करना है ना, मतलब शार्क टैंक ने तो ऐसा फील करा दिया कि तुम सोच लो तुम कर क्या रहे हो लाइफ में, वरना तुम्हारा नहीं होने वाला कुछ। एक काम कर, तेरी शादी करते हैं, हनीमून पे हम सब चलते हैं, साल तो शादी से 15 दिन पहले मैं गई थी, शादी का फंक्शन कैंसिल करके। वहां पे उन मतलब अच्छे लोगों ने बोल दिया कि आप इसलिए अपनी शादी से क्या कहते हैं यहाँ पे 10 दिन पहले खड़े हो के। आई एम लाइक डूड, मेरा ससुर देखने वाला है, कम ऑन बी रिस्पेक्टफुल, व्हाट आर यू सेइंग। आप तो बड़ी फ्लेकी हो, इसको बोला था। अरे वो कट में आया नहीं था, बट या लाइक 1.5 hour we were inside, the reason हम एंड तक थोड़े से खत्म ही हो गए थे, we were like उन्होंने इतना ग्रिल करा ना। ओके नाउ इमेजिन, ओके मैं शायद पूरा बताऊंगी। नाउ इमेजिन आप 5 एक तो ऐसे पायनियर्स के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, आपकी पिच बहुत अच्छी जाती है, यू नो 15 कैमरास आपको देख रहे हैं, एंड वो उससे एक दिन पहले ना रिलीज सेंड कराते हैं कि जो भी बोलोगे कुछ भी यूज हो सकता है, कैसे भी यूज हो सकता है, and they can mold it any way they want. उनका नरेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो यू वांट टू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, यू डोंट वांट योरसेल्फ टू गेट डिसरिस्पेक्टेड, एंड यू डोंट वांट टू लाइक you become a little careful about things, and you know that you love memes and you can become one. which I have. शादी कर लूंगी, प्रायोरिटी बन चुका है मेरा। ठीक है, सो लाइक ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, जो अच्छा था वो तो अच्छा था ही, डिजाइन्स को प्रेज मिला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला। विनीता ने काफी सपोर्ट किया था इवन व्हेन वी वर देयर। ऑफ कोर्स वो पूरा नहीं निकल कर आया, बट देयर वर प्लेसेस वेयर शी डिड सपोर्ट अस अ लॉट। Piyush was the one, let's cut that. Actually the one thing they cut from the thing was, हमने जब सारी पिच बोल दी थी, सब कुछ बता दिया था, हमने अपने नेट प्रॉफिट्स बताए थे, पीयूष ने सिर्फ एक चीज बोली थी, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, आपको सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको कमर्शियलाइज कर सके। अगर वो लाइन आती तो मजे आ जाते, बिकॉज हमारा पेन पॉइंट वही था। एज आई मेंशन्ड, एज फाउंडर्स हमारे पास विजन है, हमारे पास कंसिस्टेंसी है, और हमारे पास रेजिलियंस है कि हम ये करके रहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। एंड हैविंग दैट एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग दैट वी हैव, बिकॉज़ जिस दिन आप सोचो सब कुछ आता है, आप ग्रोथ करना बंद कर आप ग्रो करना बंद कर दोगे। एंड द टाइम पीयूष सेड दिस थिंग, आपको आता है एंड दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड आप इसलिए शार्क टैंक आए हो, एंड वी सेड यस। उन्होंने वो मेन चीज जो वहां पे कट करी, टुक द एंटायर एसेंस ऑफ इट, बिकॉज उसके बाद अनुपम ने 4 चीजें पूछी, सबने 4 चीजें पूछी, उसके जवाब क्या थे? उसके जवाब यही थे ना कि हम स्केल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस एंड वी आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एंड दैट दे आल्सो मेंशन कि अच्छा आपका प्रॉफिट ऐसा ही हो, यू आर लुकिंग टू गो इनटू बल्क, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। एंड अब एक चीज का रिस्पांस आपके शार्क दे चुके हैं, हम 2 बार रिपीट कर देंगे, बट लाइक अ इमेच्योर किड हम एक ही चीज को 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, भले आप उसको 4 एंगल से बोल रहे हो। वो हमारी समझदारी कि भाई आप तो बोलोगे, हमें शांत होना है। अब जब हम समझ गए हमें शांत होना है, तो अब शांत होते हैं। देखो हम एक्ट्रेसेस तो नहीं है ना कि चेहरे पे नहीं आएगा। इवन स्टार्टिंग में यू डिड वेरी वेल और फिर थोड़ा सा लो हो गया। आई टेल यू, देखो 1.5 घंटा 20 मिनट स्टार्टिंग अच्छी थी, मिड में लो आया, दिखाया यहाँ का, बीच का जो नहीं था ना, तो वो ट्रांजिशन नहीं दिखा, वो ये नहीं दिखा, ये दिखा, वो ये दिखा। परफेक्ट। तो मैम आप लोग फीडबैक्स को पॉजिटिव नहीं ले रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सी, जैसे मैंने अभी बोला, एज एंटरप्रेन्योर्स I will say this to everyone out there, if you're not open to change and adaptability, then you are the one losing out. और हमें ये मालूम था कुछ जगहों पे, जैसे आयशी ने बताया कि हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे नाम चेंज करना है, हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि कैटेगरी में पिवट मारना है। वो चीजों का जो कंक्लूजन निकल के आया, उससे बड़ा फीडबैक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट करती, 2 साल और लगाती, फिर रीब्रांडिंग के बारे में सोचती, जो बाय द वे रॉटिश रीब्रांड कर रहा है। You were still confused that time और वो क्लियर हो गया। That time we were confused, और उसी सेकंड निकलती आयशा ने, I was like अब रीब्रांड करना। अब वही वाली बात है, इवन आप कितने ही ब्लॉग्स पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आप जब बिजनेस एक्चुअली में करने आते हो ना, ऐसा नहीं है कि हमने बुक्स और ब्लॉग्स नहीं पढ़े थे बिफोर वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, या हमने शार्क टैंक नहीं देखा था बिफोर वी वेंट देयर। या सो वहां पे गड़बड़ ये हुआ था, जहाँ पे एक्चुअली हमारे विकेट गिरने शुरू हुए, जब आयशा से पूछा कि आपका मार्केट कितना है, अब बेचारी बहन ने लोकल की जगह ग्लोबल बोल दिया, और वो अटक गया वहीं पे। अब आयशी वाज लाइक, अब मैं करेक्ट कर देती। अब क्या होता है ना, देखो इट इज अ बॉम्बार्डिंग स्ट्रेटेजी उनकी, ठीक है। अब मैंने बोला, जैसे मैंने बोला 70,000 क्रॉस ग्लोबली, एंड देन आई वाज लाइक इंटरनेशनल बोलना, व्हिच दे कट। और अनुपम ने बोला, सब लोगों ने जब बोलना चालू कर दिया, अब ये बोल ही चुके हैं, अब करेक्ट करके क्या कर लूंगी मैं, चीटिंग थोड़ी ना करनी है यहाँ।
See, I'm sure there must have been things जो हम better कर सकते थे, वरना Yes. funding लेकर आते. Okay, I'm going to be very honest here. There is a scope of improvement which we are very open to. Very open to. Regardless, Shark Tank से honestly मुझे ऐसा feel होता है कि जो आपकी success होती है ना, उसकी life ज़्यादा लंबी नहीं है. It's a short-lived success which cannot be cemented, I would like to say. So experience था, of course, I can say in my lifetime कि national TV पर आए हैं. कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा हो गया. हाँ. So what was your primary motive to appear in Shark Tank? Actually, to be true, आज तक हमारा मन नहीं था हम शार्क टैंक पे आए. This was Do meant. you want to tell them? I'm gonna यार. Okay, I'll tell you. Can I be honest? It's a very fun story. So okay, I am very proud to say this कि मुझे हमें कायनात ने शार्क टैंक पे पहुंचाया है, क्योंकि हम कभी भी इतने लीन नहीं थे इसके प्रति, और हमारी स्टोरी जितने भी हमारा सर्कल जानता है, हमारे दोस्त जानते हैं, हमारे कलीग्स जानते हैं, उसी में लाइक यू नीड टू गो टू शार्क टैंक, यू शुड गो टू शार्क टैंक. तुम्हारी स्टोरी शार्क टैंक लाइक तुम जाओ तुम जाओ. हमने कभी किसी को वैसे नेशनल लेवल पे स्टोरी बताई नहीं है. इफ इट पॉपकॉर्न खाने का मन करेगा. Okay guys, let's move back to 2019. बिल्कुल स्क्रैच से बात करते हैं, कैसे आपने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बेचा, मैन्युफैक्चर करा, डिजाइन करा, साइजेस एंड ऑल द स्टफ. So, ideally, Aishi is the core parent of this entire project. इससे सबसे पहले आकार इंटीमेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी स्टार्ट कर, वेयर शी बेसिकली लॉन्च्ड हर फर्स्ट कलेक्शन दैट शी मेड इन डिफरेंट सैम्पलिंग हाउसेस इन न्यूयॉर्क, जहाँ पे एक एग्जीबिशन होती है बाय कर्व. It is one of the biggest exhibitions for lingerie wear, intimate wear and swimwear. And इसने अपना शो किया था वहाँ पे, सीधे न्यूयॉर्क पे जाके, because she wanted to get the buyers of US. In a single year, she was available in 11 multiple stores. Her designs were basically available in 11 stores. The problem was that these stores were not very big. They were boutique stores. तो वहाँ से जो टर्न अराउंड ऑर्डर्स का आने में उसमें टाइम लगता था, तो काफी गैप्स आ जाते थे बीच में. ये गैप्स ऐसे गैप्स थे जहाँ पे आयशा मैंने मैगी खा के काम चलाया है. कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हो या फिर तुम उसके चक्कर में स्ट्रगल से भागोगे. नहीं, इफ यू हैव टू बी एट अ प्लेस, इफ यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस, मतलब अगर आपका you have to go through certain struggles to reach some place. We were always very up for it. पता है कि ऑर्डर चला गया है, हफ्ते भर में पैसे आ जाएंगे, सैलरी उसमें से दे देंगे, घर का राशन ले आएंगे, मैगी हफ्ते भर खाना खा लेंगे, कर लेंगे काम. साल भर इस तरीके से निकाला. तब तक मैं काफी इंडल्ज हो चुकी थी काम में. उसके बाद 2018 के अंदर हमें इरोटिश को लॉन्च करने का जो आइडिया, डोमेस्टिक ब्रांड को लॉन्च करने का आइडिया था, वो आया था. Where we decided कि सिर्फ एक्सपोर्ट से काम नहीं चलने वाला. Also we saw that there is a change in the market. Women as a individual were speaking about themselves. They were becoming very much aware about themselves. You could see a shift in like entirely, and maybe because we were also at that age, 21-year-old, 23-year-old, we were that young when we started. And हमारे अंदर वो एक एम्पावरमेंट वाली फीलिंग थी कि यार हम भी तो लॉन्जरी अपनी मर्जी की पहनते हैं ना, हम भी तो स्विमवेयर अपनी मर्जी का पहनते हैं, बिकनी पहन के घूमते हैं, हम थोड़ा किसी से पूछ रहे हैं. तो हम जैसी औरतें हैं इंडिया के अंदर, तो उनके लिए कुछ बनाते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं. और एक और चीज रियलाइज हुई, अगर हम जैसी लड़कियां हैं जो पहनना पसंद करती है, बहुत सारी होती होंगी जो चाहती होंगी ये करना, शायद हम उनको पहुंच पाए, उनको फियरलेस फील करा पाए, उनको वंडरफुल फील करा पाए जैसे हम फील करते हैं. एंड that is the entire inspiration behind Erotish. So when Erotish started, हमने अपना कलेक्शन रेडी करा. Of course जब आप स्टार्ट करते हो आप मिस्टेक्स करते हो, जो हमने भी करी. हमने 120 SKUs से अपना ब्रांड लॉन्च किया था, एंड वी हैड इन्वेंटरीज इन ऑल ऑफ दीज SKUs. सबसे पहले हम आजियो पे गए, रिलायंस ने लॉन्च किया था, बिकॉज दे लव्ड आवर कॉन्सेप्ट, they loved what we were doing. वहाँ से हम मिंत्रा पे पहुंचे. So October 13th, 2019, Erotish was launched on Ajio, and then in December we were launched on Myntra. During this time, content creation बहुत important होता है, लेकिन हमारे पास फंडिंग नहीं थी, फाइनेंसेस नहीं थे. जितना भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट था जो हमें अपने फादर से मिला था, वो सारा प्रोडक्शन और डेली कैपिटल रनिंग के अंदर जा जाता था. तो मतलब वो सेल्स और मार्केटिंग के लिए जो एक विजुअल आइडेंटिटी चाहिए थी ना, उसके लिए कुछ भी नहीं था. देन बिकॉज मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, आई रियलाइज्ड कि यार व्हाई डू आई नीड मॉडल्स, व्हाई डू आई नीड अ प्रोडक्शन.
my entire and her entire reason to do this is to empower every second woman, na. So we started shooting on normal people. Okay. I have shot doctors, I have shot lawyers, I have shot theatre women, I have shot just like, and I remember, पता है आज भी मुझे लगता है, बहुत छोटी सी चीज है but आज भी मुझे लगता है जब मैं उन्हें शूट करती थी, first like I'll create the entire set, they will be in erotish ke clothes, they would be like looking fabulous and confident, and after that one picture they will come and see and they'll be like कि हम है क्या. Okay. मतलब यार उससे ज्यादा मतलब तुम्हें इससे बड़ा कनेक्ट अपनी कंपनी से कोई कहता है ना कि तुम क्यों काम कर रहे हो, मैं इसके लिए काम कर रही हूँ कि कोई किसी दिन एक लड़की हमारे कपड़े हमारा ब्रांड पहन के बोल सके यार ये मैं हूँ क्या. और मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं. और आज जब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमें बताते नहीं कि उन्होंने हमसे परचेज किया, हमें कब पता चलता है जब उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर डाली, मुझे टैग किया या इसको टैग किया और इरोटिश को टैग किया, एंड वी आर लाइक wow, you're looking amazing, and they come and give us a feedback. You know what, I loved it, it's the best of the garment that I've ever had, and it makes me feel so beautiful and confident. I remember there was this girl, I don't remember her name unfortunately, she bought her first bikini from Erotish, first ever. She went to Maldives, she sent few photographs back and she was like मैंने life में पहली बार पहनी है, and I feel so confident that even I can wear something like that. मतलब इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है काम करने का. बीइंग वुमेन, मतलब आप ये सोचो ना कि हर लड़की चाहती है ना, जो मैंने बोला भी था शार्क टैंक में, विनीता, हर लड़की चाहती है ना अपने आप को अच्छे स्विमवेयर में देखना, चाहे वो माने ना माने, चाहे उसकी सराउंडिंग्स उसको अलाउ करे ना करे. हर इंसान का एक होता है कि आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट, एंड दैट एंटायर एनर्जी इज वॉट दैट ड्राइव्स अस. या तो मैम अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताओ, ब्रांडिंग के बारे में, कि क्यों किसी को आपका प्रोडक्ट ही यूज करना चाहिए. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक बहुत मेजर बिलीव है एज अ ब्रांड ना, अगर आप एक ब्रांड एक क्यूरेट कर रहे हो, आप ब्रांड प्रोडक्ट के लिए क्यूरेट नहीं करते हो, आप ब्रांड उसकी बिलीव्स के लिए और उसके एथोस के लिए क्यूरेट करते हो. इफ देयर इज अ पर्सन हु इज अलाइंड बाय आवर माइंडसेट एज फाउंडर्स, जिनका बिलीव है कि उन्हें विमेन के लिए एक एम्पावरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो वो प्रोडक्ट अभी लॉन्जरे है, अभी स्विमवेयर है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है. बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट अलाइंस माय माइंडसेट विद योर्स, यू आर माय कस्टमर. एंड वी जस्ट डोंट वांट टू फोकस कि भाई बिकॉज हम डिजाइनिंग बैकग्राउंड से हैं, एंड अपैरल एक ऐसी चीज है अनटिल आप उसमें एक टेक नहीं घुसाते, आप उसमें एक टेक इनपुट नहीं देते, इट्स नॉट गोना बी अ यूनिक प्रोडक्ट. एनीवन एंड एवरीवन कैन कॉपी इट, एंड दैट इज व्हाट फैशन इज. Every brand copy from each other and they make them unique in their own way. But why do people go to the brand? They go to the brand because they can align with them. Emotional connect. And in today's time जब हर तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, एक इमोशन ही तो है इंसान को आपकी तरफ ड्राइव करने के लिए. Sorry to cut you. For example, आप ज़ारा से भी स्विमवेयर खरीद सकते हो, आपको पता है बना कौन रहा है, आपको पता है कौन उसका ओनर है, क्या वो आके अपने एक्चुअल ब्रांड की वैल्यूज और एथोस शेयर कर रहे हैं आपसे. आज के टाइम की जो वुमेन है ना, वो बहुत अवेयर है. ऐसा नहीं है, शी इज नॉट अ फूल कि तुम उसको, हाँ, कि उसको ये नहीं जानना कि जो उसने पहन रखा है वो कहाँ से आ रहा है. व्हाई डू यू थिंक स्मॉल स्टार्टअप्स विद अपैरल आर कमिंग सो मच? बिकॉज एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल, एंड पीपल हु वांट टू वेयर स्टोरी टेलिंग आर्टिकल्स, दे कम एंड बाय देम. क्योंकि उनको लगता है हम किसी की कहानी का हिस्सा है. क्योंकि आपकी कहानी किसी की मूवी हो सकती है ना, वी आर द पार्ट ऑफ इट. एंड टू फील दैट इन डेली लाइफ, इन इस दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना कमर्शियलाइज्ड है, अपने कपड़ों में इमोशन फील करना, क्योंकि वो सिर्फ आप कर सकते हो, is a blessing. And I guess that is the feeling we want to give out, that we are two founders जिन्होंने अपने struggles करे हैं, अपनी desires भी पूरी करी हैं, लेकिन एक विजन के साथ आती है. अगर हम fearless हैं तो हर कोई हो सकता है. एंड अगर आप वो अलाइन करते हो या आप वो चाहते हो, तो आप हमारा कस्टमर हो, भले आप एक मैन हो, आप एक विमेन हो, आप एक गर्ल हो या फिर एक बॉय हो. एनीबडी कैन बी Erotish or the new brand that will come if you are fearless. I remember I was in Goa. This is 2020 if I'm not mistaken, 21 शायद.
and I was wearing one of Erotish's bikini, and I had a sarong wrapped around it. So Erotish, of course, has lingerie, which is your bras and panties, and then the nightwear section is there. Apart from that, we are very proud to say this, that we not only design garments, we design ensembles, we design looks. कि अगर आपने मेरा swimwear पहना है तो उसके ऊपर के लिए मैचिंग कवर अप भी मेरे से लो, उसके साथ मैचिंग बीच वेयर भी मेरे से ले लो, और आगे जिस तरीके से मेरी ब्रांड बढ़ने वाली है, हमारा विजन ये है कि ऊपर से नीचे तक जो एक वेकेशन पे पहनना है वो मेरे से ले जाओ. Head to toe, entire styling will be done by us. So I remember I was wearing this bikini and I was wearing this sarong, and the one of the girls, she came to me and she is like, "Oh, I know this print. Is this from Erotish?" Okay. And I was like struck. I remember मैं कहाँ खड़ी थी, मुझे उस टाइम याद है सूरज कहाँ है, सब कुछ. I can like go back in that moment. And she gave me a video call. This just happened. And I'm like, I'm the founder and designer of Erotish, and she's still connected with me on Instagram. मुझे बहुत खुशी होती है ये बात जान के कि मेरा प्रिंट कोई इंसान जानता है और नाम से जानता है. So again, small wins. अब वही वाली बात है ना, in the sea of startups हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है आज भी इन्हीं बिजनेसेस पे चल रही है, एक प्रॉफिटेबल मॉडल पे चल रही है, राइट. एंड जब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ कि आप कितना और ज्यादा कर सकते हो. और मे बी शायद हमारी स्टोरी सुन के जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शायद हम इतने बड़े बन पाए नहीं बन पाए, आई थिंक दे विल गेट अ आंसर टू देयर क्वेश्चन इज जस्ट स्टार्ट. Even in my own company, we have a percentage of 50-50, 50% women, 50% men. And हम सिर्फ empowerment के बारे में ऐसे ही नहीं बोलते, हम उसको actually follow भी करते हैं. I can tell you the small story. There's this girl in my company called Anjali. She's going to love that, है ना? So वो मेरे company में फिनिशिंग लेडी की तरह आई थी, धागे काटती थी. एक टाइम पे जब लॉकडाउन था, हमने बहुत स्मार्ट काम किया था. हम लोग नोएडा से आगरा शिफ्ट हो गए थे क्योंकि पता नहीं था कि कब खोलेगा कोविड के अंदर. और जितना भी मैंने माल बनाया था ना, उसकी जो छाटे थी मेरे पास में, वो भी ले आई थी वापस. और लॉकडाउन के अंदर क्योंकि मास्क बिक रहे थे, हमने उन छाटों से डिजाइनर मास्क बना के बेचे थे. हमने 1 करोड़ का टर्नओवर किया था उससे 6 महीने के और उस टाइम हमारे पास लोन था 22 लाख का, पूरा पे ऑफ उसी से किया था. और वो लड़की उस टाइम पे उन मास्कों को छाटा करती थी. 2020 से 2024 आज के टाइम पे उस लड़की के अंदर 14 लोगों की टीम है, वो प्रोडक्शन मैनेजर है. पूरी मार्केट कैप्चर करा. और मेरा मानना ये है कि आप एक कंपनी के अंदर अपने लोगों को कितना ग्रो कर सकते हो ना, उसको एम्पावरमेंट. उसको पढ़ना था, वो कॉलेज कर रही थी, वो कंप्यूटर सीख रही थी, उसने हमें बताया, तो धीरे धीरे हर एफर्ट वाज देयर, हमने भी देखा, और आज इतनी बड़ी वो टीम मैनेज खुद करती है. एक और लड़की है पिंकी, इस तरीके से धीरे धीरे करते करते जो मेरा स्टॉक मैनेजमेंट है वो उसके हाथ में जा रहा है. हमारे यहाँ एक भैया थे, मुकेश भैया, अभी भी है मुकेश भैया, वो ऑफिस बॉय थे सिर्फ. आज के टाइम पे मेरे जितने डिस्पैचेस होते हैं वो उनके हाथ से निकलते हैं. डिस्पैच कोऑर्डिनेटर फॉर. मतलब हमारा सारा का सारा पॉइंट ये है, मैं बाहर से किसी को सीखे सिखाए को क्यों लाऊं जब मैं घर के अंदर सिखा सकती हूँ. अदरवाइज फायदा क्या. हमारे ऊपर भी किसी ने बेट किया ना, हमारे फादर ने हमारे ऊपर बेट किया ये बोल के, कोशिश करो, सीखो, हार गए कोई बात नहीं, बिना कोशिश करे हारोगे तो तुम हारे हुए ही हो जिंदगी पर. और हमारा आज भी यही गोल रहता है लोगों के साथ, हम जिन भी कंपनियों के साथ भी काम करते हैं, कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें आगे भी मिले, और जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं हम उनको अपॉर्चुनिटी भी दें. मैम, आपके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? So again, we are in the process of rebranding. Okay. एंड जब रीब्रांडिंग होगी हमारे साथ साथ आपको भी पता चलेगा. मैम, क्या एक रीजन है कि आपको शार्क टैंक में फंडिंग नहीं मिली? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम आपको एक बात बताते हैं, हमें एज एंटरप्रेन्योर्स हर माँ बाप को पता होता है कि बच्चे में कुछ खमियां हैं. हम उसको मार्केट नहीं करते, हम उसको ठीक करते हैं अंदर ही. इंटरनली यू मेक थिंग्स गो राइट. तो हमारा बच्चा एरोटिश है. इवन जब मेरी शादी पक्की हो रही थी, मेरे पापा ने मेरे ससुर को बोला था इस लड़की के साथ एक बच्चा आ रहा है, ठीक है. सो ये मान के चलो हमें पता था खामियां हैं. अब उन खामियों को उन्होंने पकड़ लिया. अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वहां से वो चीज ठीक थी या गलत थी, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो वैलिडेशन हमको अपनी चेंजेस के लिए चाहिए था, हमें वहां से वो मिला. क्योंकि वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन ईयर कि नाम बदलना है. बदले नहीं बदले, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है लेना कि नाम बदले नहीं बदले. एक तो वो चीज, और उसके बाद हम बहुत सारी कैटेगरीज में थे, हमें भी मालूम था, और हमें दिख रहा था कि स्विमवेयर और बीच वेयर हमारा मेजर रेवेन्यू देता है. एंड इन 2023 जनवरी हमने ऑलरेडी लॉन्जरे में काम करना बंद कर दिया था. We were focusing on swimwear and beachwear category because we are bootstrapped, वो profitable vertical था हमारा, तो हमारी सारी energies वहीं जा रही थी. But
obviously we are sitting with inventories. We cannot just let go of that inventory saying कि हम उसमें काम ही नहीं करते. वो हमारा पार्ट है वर्टिकल का, वो अभी भी चलेगा till the time हम उसको खत्म नहीं कर लेते. But our focus has been on swimwear and beachwear since 2023. Since 2023. अगर आपको ऑफर्स मिल जाते हैं और काउंटर ऑफर करने का चांस मिलता तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाते या फिर शार्क्स के नेटवर्क की तरफ? We would have gone on sharks. तो गाइज अगर किसी टीनेजर को इस बिजनेस में एंटर करना है तो क्या क्या उसको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसके पास होनी चाहिए? एज यू बोथ वर फ्रॉम डिजाइनिंग बैकग्राउंड, लेट्स सपोज अगर वो डिजाइनिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो? सी इसका 2 पार्ट आंसर है मेरे पास. पहला तो आंसर किसी भी उस इंसान के लिए जो कुछ करना चाहता है, क्योंकि यू कैन नेवर बी टू प्रिपेयर्ड. आप बहुत सीख के जाओ, आप किताबें पढ़ के जाओ, आप ब्लॉग्स देख के जाओ, आप मेंटर्स के साथ अपनी चीजें सीख कर जाओ. जब आप एक्चुअली कर रहे होते हो ना, यू विल एंड अप फीलिंग दैट मे बी मेरी प्रिपरेशन यहाँ कम रह गई, बट दैट डजंट मीन यू वोंट स्टार्ट. The only advice I will give to any person who wants to do anything of their own is start. Don't think कल परसों तरसों आज. Listen to your customer first. What they are asking for, what they are looking for. And अगर आप उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हो या आप उनके इमोशंस को कैप्चर कर लेते हो, वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है. देन यू मेक योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट व्हाट नीड्स टू बी डन टू केटर टू दैट पेन पॉइंट. भले आप डिजाइनिंग बैकग्राउंड से होके नहीं हो, आप टेक बैकग्राउंड से होके नहीं हो, या फिर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से होके नहीं हो. If you can hear your customer, you can actually work everything backwards and make it a profitable business. Yeah, thank you so much guys. I really appreciate your presence over here. बहुत अच्छी insights मिली मेरे को.